میں کتھا کتھن الہ آباد سے طاہرہ کاظمی. یہ مئی کا مہینہ رابندر ناتھ ٹیگور جی اور منٹو جی کے نام کیا گیا ہے. میں منٹو جی کی لکھی ہوئی یہ کہانی آج آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. گولی. شفقت دوپہر کو دفتر سے گھر آیا تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے. عورتیں تھیں جو بڑے کمرے میں بیٹھی تھیں. شفقت کی بیوی عائشہ ان کی مہمان نوازی میں مصروف تھی. جب شفقت صحن میں داخل ہوا تو اس کی بیوی باہر نکلی اور کہنے لگی عزیز صاحب کی بیوی اور ان کی لڑکیاں آئی ہیں. شفقت نے ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پوچھا. کون عزیز صاحب؟ عائشہ نے آواز دبا کر جواب دیا ہائے آپ کے ابا جی کے دوست. او عزیز چچا. ہاں وہی. مگر وہ تو افریقہ میں تھے. ذرا آہستہ آہستہ بات کیجیے. آپ تو چلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ افریقہ میں تھے لیکن جو افریقہ میں ہو کیا وہ واپس نہیں آ سکتا ہے؟ لو اب تم لگی مین میخ کرنے. آپ تو لڑنے ہی لگے. عائشہ نے ایک نظر اندر کمرے میں ڈالی. عزیز صاحب افریقہ میں ہیں لیکن ان کی بیوی اپنی لڑکی کی شادی کرنے آئی ہیں. کوئی اچھا ور ڈھونڈ رہی ہیں. اندر سے عزیز کی بیوی کی آواز آئی. عائشہ تم نے روک کیوں لیا شفقت کو؟ آنے دو. آؤ شفقت بیٹا آؤ, تمہیں دیکھے اتنی مدت ہو گئی ہے. آیا چچی جان. شفقت نے ہیٹ سٹینڈ کی کوٹی پر رکھا اور کمرے میں داخل ہوا. آداب عرض ہے چچی جان. عزیز کی بیوی نے اٹھ کر اس کو دعائیں دیں, سر پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گئی. شفقت بیٹھنے لگا تو اس نے دیکھا سامنے صوفے پر دو گوری گوری لڑکیاں بیٹھی ہیں. ایک چھوٹی تھی دوسری بڑی. دونوں کی شکل آپس میں ملتی تھی. عزیز صاحب بڑے خوبصورت آدمی تھے. ان کی یہ خوبصورتی ان لڑکیوں میں بڑے دلکش طور پر بٹی ہوئی تھی. آنکھیں ماں کی تھیں, نیلی, بال بھورے اور کافی لمبے. دونوں کی دو چوٹیاں تھیں. چھوٹی کا چہرہ بڑی کے مقابلے میں زیادہ نکھرا ہوا تھا. بڑی کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا. ان کی ماں ان سے مخاطب ہوئی. بیٹا سلام کرو بھائی کو. چھوٹی نے اٹھ کر شفقت کو آداب عرض کیا. بڑی نے بیٹھے بیٹھے ذرا جھک کر کہا تسلیمات. شفقت نے مناسب جواب دیا. اس کے بعد عزیز صاحب اور افریقہ کے متعلق باتوں کا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا. نیروبی, ٹاکانیگا, دارالسلام, کارانیتا, یوگانڈا, ان سب کی باتیں ہوئیں. کہاں کا موسم اچھا ہے, کہاں کا خراب ہے, پھل کہاں کے اچھے ہوتے ہیں. پھلوں کا ذکر چھڑا تو چھوٹی نے کہا یہاں ہندوستان میں تو نہایت ذلیل پھل ملتے ہیں. جی نہیں, بڑے اچھے پھل ملتے ہیں بشرط کہ موسم ہو. شفقت نے اپنے ہندوستان کی آبرو بچانی چاہیے. غلط ہے, چھوٹی نے ناک چڑھائی. اماں جان یہ جو کل آپ کے مارکیٹ کے مالٹے لیے تھے آپ نے, کیا وہاں کے مچنگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لڑکیوں کی ماں بولی شفقت بیٹا یہ صحیح کہتی ہے, یہاں کے مالٹے وہاں کے مچنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عائشہ نے چھوٹی سے پوچھا طلعت یہ مچنگا کیا ہوتا ہے؟ نام تو بڑا عجیب و غریب ہے. طلعت مسکرائی. آپا ایک پھل ہے, مالٹے اور میٹھے کی طرح, اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اور رس ایک نچوڑیے تو یہ گلاس جو تپائی پر پڑا ہے لبالب بھر جائے. شفقت نے گلاس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ پھل کتنا بڑا ہوگا. ایک مچنگے سے اتنا بڑا گلاس بھر جاتا ہے؟ طلعت نے بڑے گرو سے جواب دیا جی ہاں. شفقت نے یہ سن کر کہا تو یقیناً پھل بہت بڑا ہوتا ہوگا. طلعت نے سر ہلایا. جی نہیں, بڑا ہوتا نہ چھوٹا ہوتا, بس آپ کے یہ بڑے مالٹے کے برابر ہوتا ہے. یہی تو اس کی خوبی ہے کہ رس ہی رس ہوتا ہے اس میں. اور امی جان وہاں کا انناس بڑی روٹی کے برابر تو ایک پھانک ہوتی ہے اس کی. دیر تک انناس کی باتیں ہوتی رہی. طلعت بہت باتونی تھی. افریقہ سے اس کو عشق تھا, وہاں کی ہر چیز اس کو پسند تھی. بڑی جس کا نام نگہت تھا بالکل خاموش بیٹھی رہی. اس نے گفتگو میں کوئی حصہ نہیں لیا. شفقت کو جب محسوس ہوا کہ وہ خاموش بیٹھی رہی ہے تو وہ اس سے مخاطب ہوا. آپ کو غالباً ان باتوں میں دلچسپی نہیں؟ نگہت نے اپنے ہونٹ کھولے. جی نہیں.
सुनती रही हूँ बड़ी दिलचस्पी से। शफकत ने कहा, लेकिन आप बोलती नहीं। अजीज की बीवी ने जवाब दिया, शफकत बेटा, इसकी तबीयत ही ऐसी है। शफकत ने जरा बेतकल्लुफी से कहा, चची जान, इस उम्र की लड़कियों को खामोश पसंद नहीं होना चाहिए। ये भी कोई बात हुई, मुंह में घुघनियां डाले बैठे रहो। वो फिर निघत से मुखातिब हुआ, जनाब आपको बोलना पड़ेगा। निघत के होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट पैदा हुई। बोल तो रही हूँ भाईजान। शफकत मुस्कुराया। तस्वीरों से दिलचस्पी है आपको? निघत ने निकाहें नीचे करके जवाब दिया, जी हाँ। तो उठिए, मैं आपको अपना एल्बम दिखाऊं, दूसरे कमरे में है। ये कहकर शफकत उठा। चलिए। आयशा ने शफकत का हाथ दबाया। पलटकर उसने अपनी बीवी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया जिसे शफकत समझ न पाया। वो हैरान था कि खुदा मालूम क्या बात है कि उसकी बीवी ने उसका हाथ दबाया और इशारा भी किया। वो सोच ही रहा था कि तलत खट से उठी। चलिए भाईजान, मुझे दूसरों के एल्बम देखने का बहुत शौक है, मेरे पास भी एक कलेक्शन है। शफकत तलत को लेके दूसरे कमरे में चला गया। शफकत तलत को तस्वीरें दिखाता रहा। अपनी आदत के मुताबिक तलत बोलती रही। शफकत का दिमाग किसी और तरफ था। वो निघत के बारे में सोच रहा था कि वो इतनी खामोश क्यों है, तस्वीरें देखने उसके साथ क्यों ना आई। जब उसने उसको देख चलने के लिए कहा तो आयशा ने उसका हाथ क्यों दबाया? इस इशारे का क्या मतलब था जो उसने आंख से किया था? तस्वीरें खत्म हो गई। तलत ने एल्बम उठाया और शफकत से कहा, बाजी को दिखाती हूँ, उनको बहुत शौक है तस्वीरें जमा करने का। शफकत पूछने ही वाला था कि अगर उनको शौक है तो वो साथ क्यों ना आई, मगर तलत एल्बम उठाकर कमरे से बाहर चली गई। शफकत बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो निघत बड़ी दिलचस्पी से एल्बम की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर उसे खुशी पहुंचाती थी। आयशा लड़कियों की माँ से बातें करने में मशगूल थी। शफकत कंखियों से देखता रहा। उसका चेहरा जो पहले से जरूरत से ज्यादा संजीदगी की धुन में लिपटा हुआ था, अब साफ था। ऐसा लगता था कि तस्वीरें जो आर्ट का बेहतरीन नमूना थी, उसको राहत बख्श रही थी। उसकी आंखों में अब चमक थी। लेकिन जब एक घोड़े और सेहतमंद औरत की तस्वीर आई तो ये चमक मांद पड़ गई। एक हल्की सी आह उसके सीने में लर्जी और वही दब गई। तस्वीरें खत्म हुई तो निघत ने शफकत की तरफ देखा और बड़े प्यारे अंदाज में कहा, भाईजान शुक्रिया। शफकत ने एल्बम निघत के हाथ से लिया और मेंटल पीस पर रख दिया। उसके दिमाग में खुदबुद हो रही थी। उसको ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ा रहस्य उस लड़की की जिंदगी के साथ छिपा है। उसने सोचा शायद कोई अधूरा रोमांस हो या कोई जहनी परेशानी। चाय आई तो शफकत निघत से मुखातिब हुआ, उठिए चाय बनाइए, ये प्रिविलेज लेडीज का है। निघत खामोश रही, लेकिन तलत कुदक कर उठी, भाईजान मैं बनाती हूँ। निघत का चेहरा फिर धुंध में लिपट गया। शफकत की उत्सुकता बढ़ती गई। एक बार उसने निघत को घूर कर देखा तो वो सिटपिटा सी गई। शफकत को दिल ही दिल में इस बात का अफसोस हुआ कि उसने क्यों ऐसी गलत हरकत की। चाय पर इधर उधर की ढेर सारी बातें हुई। तलत ने उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। टेनिस का जिक्र आया तो उसने शफकत को बड़े गर्वीले अंदाज में, जो शेखी की हद तक जा पहुंचा था, बताया कि वो नैरोबी में नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी और 15-20 कप जीत चुकी थी। निघत बिल्कुल खामोश रही। उसकी खामोशी बड़ी उदास थी। साफ जाहिर था कि उसको इस बात का एहसास है कि वो खामोश है। एक बात जो शफकत ने खास तौर पर नोट की, ये थी कि अजीज की बीवी की ममता का रुख ज्यादातर निघत की तरफ था। उसने खुद उठकर बड़े प्यार मोहब्बत से उसको क्रीम रोल दिया, मुंह पोंछने के लिए अपना रुमाल दिया। उससे कोई बात करती थी तो उसमें प्यार और प्यार ही होता था। ऐसा लगता था कि वो बातों के जरिए से भी उसके सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेर रही है या उसको चुमकार रही है। रुखसत का वक्त आया तो अजीज की बीवी उठी, बुरखा उठाया, आयशा से गले मिली, शफकत को दुआएं दी और निघत के पास जाकर आंखों में आंसू ला देने वाले प्यार से कहा, चलो बेटा चलें।
तलत फुदक कर उठी। अजीज की बीवी ने निघत का एक बाजू थामा, दूसरा बाजू तलत ने पकड़ा। उसको उठाया गया। शफकत ने देखा उसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान था। एक क्षण के लिए शफकत का दिलो दिमाग ठहर गया। जब वो संभला तो उसे अपने अंदर एक टीस सी महसूस हुई। लड़खड़ाती हुई टांगों पर माँ और बहन का सहारा लिए निगत गैर यकीनी कदम उठा रही थी। उसने पेशानी के पास हाथ ले जाकर शफकत और आयशा को आदाब अर्ज किया। कितना प्यारा अंदाज था, मगर उसके हाथ ने शफकत के दिल पर जैसे घूंसा मारा। सारा राज उस पर खुल गया था। सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में यह आया, कुदरत क्यों इतनी बेरहम है। ऐसी प्यारी लड़की और उसके साथ इस कद्र जालिमाना सलूक। इस मासूम और का आखिर गुनाह क्या है जिसकी सज़ा इतनी कड़ी दी गई है। सब चले गए। आयशा उनको बाहर तक छोड़ने गई। शफकत एक फ़लसफ़ी बना सोचता रह गया। इतने में शफकत के दोस्त आ गए और वो भी अपनी बीवी से निघत के बारे में कोई बात न कर सका। अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में ऐसा मशगूल हुआ कि निघत और उसके रोग को भूल ही गया। जब रात हो गई और आयशा ने उसे नौकर के ज़रिए खाने पर बुलवाया तो उसे अफसोस हुआ कि उसने एक खेल की खातिर निघत को और उसकी बीमारी को भुला दिया। चुनांचे इसका जिक्र उसने आयशा से भी किया, लेकिन उसने कहा, आप खाना खाइए, पूरी बातें फिर हो जाएंगी। मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे सोते थे। जब से शादी हुई थी कभी रात को एक दूसरे से जुदा नहीं हुए थे और शादी को करीब 6 बरस हो गए थे, मगर इस दौरान में कोई बच्चा न हुआ था। डॉक्टरों का ये कहना था कि आयशा में कुछ कसर है जो सिर्फ ऑपरेशन से दूर हो सकती है, मगर वो इससे बहुत डरी हुई थी। मियाँ बीवी बहुत प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके दरमियान कोई रंजिश नहीं थी। रोज़ाना की तरह जब एक दूसरे के साथ लेटे तो शफकत ने निघत की याद आई। उसने एक आह भरकर अपनी बीवी से पूछा, आयशा, निघत बेचारी को क्या रोग है? आयशा ने भी एक आह भरी और बड़े अफसोसनाक लहजे में कहा, 3 बरस की नन्ही मुन्नी बच्ची थी, बीमार पड़ी और निचला धड़ बेकार हो गया। शफकत के दिल में निघत के लिए हमदर्दी का बेपनाह जज्बा पैदा हुआ। उसने अपनी बीवी की पीठ को अपने सीने से लगाकर कहा, आयशा, खुदा इतना जालिम क्यों है? आयशा ने कोई जवाब न दिया। शफकत को दिन की घटनाएं याद आने लगी। जब मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें एल्बम दिखाता हूँ, तो तुमने मेरा हाथ इसलिए दबाया था कि हाँ तो और क्या, आप तो बार बार। खुदा की कसम मुझको मालूम नहीं था। उसको इस बात का बहुत एहसास है कि वो अपाहिज है। तुमने ये कहा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सीने में किसी ने तीर मारा है। जब वो आई तो खुदा की कसम मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी, खुदा की कसम बिल्कुल पता नहीं चलता कि फालिद ज़दा है। बड़ी ज़हीन लड़की है। अच्छा, माँ कहती थी कि उसने कहा कि अम्मा जान, मैं शादी नहीं करूँगी, कुंवारी रहूँगी। शफकत थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। इसके बाद उसने इंतहाई दुख महसूस करते हुए कहा, तो उसको इस बात का एहसास है कि उससे शादी करने के लिए कोई रजामंद नहीं होगा? शफकत साहब, कौन शादी करेगा एक अपाहिज से? नहीं नहीं, ऐसा ना कहो आयशा। इतनी बड़ी कुर्बानी कौन कर सकता है शफकत साहब? शफकत ने कहा, तुम ठीक कहती हो। खूबसूरत है, खाते पीते माँ बाप की लड़की है, सब ठीक है, मगर मर्दों के दिल में रहम कहाँ? शफकत ने करवट बदली। ऐसा ना कहो आयशा। आयशा ने भी करवट बदली। दोनों रूबरू हो गए। मैं सब जानती हूँ। कोई ऐसा मर्द ढूंढिए जो इस बेचारी से शादी करने पर आमादा हो। मुझे मालूम नहीं, लेकिन आयशा ने कहा, बड़ी बहन है, गरीब को कितना बड़ा दुख है कि उसकी छोटी बहन की शादी की बातचीत हो रही है। सही कहती हो तुम। आयशा ने एक लंबी आह भरी। क्या बेचारी इसी तरह सारी उम्र कुड़ती रहेगी? नहीं, ये कहकर शफकत उठकर बैठ गया। आयशा ने पूछा, क्या मतलब? तुम्हें उससे हमदर्दी है? क्यों नहीं?
خدا کی قسم کھا کر کہو ہائے یہ بھی کوئی قسم کھلوانے کی بات ہے، ہر انسان کو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ شفقت نے کچھ چھڑ خاموش رہنے کے بعد کہا تو میں نے ایک بات سوچی ہے۔ عائشہ نے خوش ہو کر کہا کیا؟ مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہا ہے کہ تم بہت بلند خیال عورت ہو، آج تم نے میرے اس خیال کو ثابت کر دیا ہے۔ میں نے خدا میرے اس ارادے کو مضبوط کرے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نگہت سے شادی کر لوں گا، سارا ثواب تمہیں ملے گا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ایک دم جیسے گولا سا پھٹا، شفقت صاحب میں گولی مار دوں گی اسے اگر آپ نے اس سے شادی کی۔ شفقت نے ایسا محسوس کیا کہ اسے زبردست گولی لگی ہے اور وہ مر کر اپنی بیوی کی آغوش میں دفن ہو گیا ہے۔